हेलो, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखर-ए-आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स इन द ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. And it has been an exciting World Cup, and now we're almost towards the last few games in these round matches before we get into the knockout stages. And before that, let me bring into the conversation four former captains, four outstanding minds of cricket who are with us in this Pavilion journey throughout. I've got first up, Shoaib Malik. Good afternoon and assalamu alaikum, Shoaib. Good afternoon, walaikum salam, assalamu alaikum. Next up, I've got Misbah. Good afternoon, assalamu alaikum, Misbah. Good afternoon, walaikum assalam. With me, the silver fox of the pavilion, Moin Khan. Good afternoon, assalamu alaikum, Moin. Good afternoon, walaikum assalam. Assalamu alaikum, everyone. And the royalty himself, Sultan of Swing, Wasim Akram. Good afternoon, assalamu alaikum, Wasim. Good afternoon, Fakhar. Good afternoon, everyone. Assalamu alaikum. राइट जनाब, कल भी एक मुकाबला था. इट वाज न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका. पाकिस्तान के ये जो फैंस थे उनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी इस मैच के साथ. बट दिस इज हाउ द मैच वेंट डाउन. अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान इट वाज न्यूजीलैंड दैट केम आउट विक्टोरियस. ये मैच समरी विक्टोरियस मैच समरी आपके सामने लेकर आ रहे हैं. दिस इज हाउ इट वेंट डाउन यस्टरडे. श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट. दे वर पुट इनटू बैट बाय न्यूजीलैंड. टॉस न्यूजीलैंड ने जीता था. 171 all out. Pereira there with a very fantastic half century, but unfortunately it wasn't enough to put a total that was worth New Zealand to chase. In reply, New Zealand actually just did that in 23.2 overs. Conway there with 45, Mitchell there with 43. Mitchell came out with a lot of intent, a lot of aggression. Ravindra also putting up 42 there. This is how it went down. Now for bowled 3 wickets while bowling, Ravindra also picking up a couple and Santner too. And in reply, well, the Sri Lankans couldn't defend that target. It wasn't enough. As I said earlier, Matthews 2 for 29, Jamira there 1 for 20, and Tishkana there 1 for 43. New Zealand winning that one by 5 wickets and pretty much cementing their place in the सेमीफाइनल. अभी तक क्वालिफाई नहीं हुए, चूंकि ये आज के मैच के बाद और फिर पाकिस्तान के मैच के बाद वो फाइनली आई थिंक उनका वो क्वालिफिकेशन होगा. बट आई थिंक दिस इज प्रीटी मच अ डन डील फॉर न्यूजीलैंड. लेट्स टेक अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल, हाउ इट स्टैंड्स दिस आफ्टरनून. दिस इज हाउ द पॉइंट्स टेबल इज. ऑल द टीम्स हैव प्लेड देयर 8 games and you see India right on top. They've already qualified for the semi-final. They are undefeated in this World Cup. They're looking really fantastic. South Africa, they're now at the second position with 12 points, and Australia on the third position. So these are your 3 qualified teams for the semi-finals, and New Zealand should be the 4th one. Pakistan now at number 5, Afghanistan at number 6, England at 7, Bangladesh 8, Sri Lanka 9, Netherlands 10. And that's how your points table is looking like this afternoon. Right, just to go back to the game last night, Wasim. What game? It was a game last night? It was a game last night. It was Sri Lanka versus New Zealand. Yeah, like I said last night, first 10 overs when they were 5 down, it was over. It was over, yeah. Yeah, it was. It was a total disaster for Sri Lanka. I mean, Matthew came as a batter. He bowled well. He didn't bat well at all. He's the most experienced. He should have been in the place. In the first place, yeah. in the squad, because they needed experience in the batting. और batting में of course एक दो लड़कों ने काफ़ी disappoint किया है. I mean, score किया सदीरा ने, but he's a very good player. He's got to be more consistent. Yeah. And situation awareness, अब वही बात आती है. पाकिस्तान तो नहीं, श्रीलंका की भी situation awareness कोच तो नहीं सिखाएगा ना. See the new ball off, get to certain total and try to win the game. और पहले ही, और ये तो था ना, अच्छी बॉल पे आपने रोक के स्लिप लग गई, बोल्ड हो गए, लेग बिफोर हो गए, ठा डू अंधे धुंध मारी गए हैं. There was like chaos. I know. Actual chaos in their batting, and it was kind of a downer yesterday, the game, the way the game went. I mean, they scored that total in 23 overs and without any hesitation. Yeah, without any problems whatsoever. I mean, few wickets gone there. Moin, Pakistan के लिए, you know, it was again वही वाली सिचुएशन जो हमें हमेशा सुनते आए हैं तारीखी तौर पे. वो उससे हारेगा, वो उससे इतने रनों से हारे, वो इधर ये चला जाए, उसकी एवरेज है जो वहाँ बारिश हो जाए और फिर पाकिस्तान जीतेगा. एंड दिस इज हाउ वी वर डिपेंडिंग यस्टरडे. श्रीलंका के ऊपर पाकिस्तान की उम्मीदें वापस नहीं है. श्रीलंका जीते अपना मैच तो फिर पाकिस्तान का जो है चांस, अगर अगला मैच पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ जीत जाता है. ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा पाकिस्तान का? हम अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे क्यों नहीं अपनी सिक्योर कर सकते पोजीशन? देखिए, रहा तो ऐसा सिलसिला बिल्कुल कि डिपेंड कर रहे होते कि वो जीतेगा तो ये हो जाएगा, सिनेरियो बनेगा पाकिस्तान के लिए. लेकिन पाकिस्तान की मैं कहूँगा थोड़ी सी बैड लक भी रही है अगेंस्ट, स्पेशली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप मैच देखें तो कुछ ऐसे डिसीजन थे जो पाकिस्तान की फेवर में नहीं गए, जो जाने वाले थे फेवर में. ऑन ग्राउंड अंपायर को आउट देना चाहिए था, वो नॉट आउट दिया गया. फिर रेफर लिया, उसके ऊपर आउट नहीं हुआ. आई थिंक थी प्रॉब्लम्स काफ़ी रही हैं, बट हमने जो
टोटली एनालाइज किया पाकिस्तान टीम को, आई थिंक दे वर नॉट फिट इनफ फॉर दिस कंपटीशन, दे वर नॉट रेडी। पहले भी बात हुई कि पिछले 2-2.5 महीने आपने ऐसे मुल्क में गुजार दिए जहाँ पे कंडीशंस बहुत ही टफ थी पाकिस्तान के लिए, यू नो, ड्रेन आउट हो गए। वो जो एनर्जी लेवल था वो नज़र नहीं आया कहीं भी पाकिस्तान टीम में। 1-2 मैचेस के अंदर हमने देखा थ्रू शाहीन ने बड़ा ज़ोर लगाया, उसका रिदम नज़र आया, हमने बात की कि हाँ इसका रिदम आ गया वापस, एंड देन अगेन इन द वेरी नेक्स्ट मैच फिर उसका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डाउन था। आई थिंक ये टोटल इम्पैक्ट जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि जो बैड प्लानिंग थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द वर्ल्ड कप, कि 2-2.5 महीने आपने ऐसे मुल्क में अपनी टीम को भेज दिया। क्वेश्चन राइजेस इसी पे कि ये 3 बोर्ड आए ना पिछले 1 साल में, तो ये किस बोर्ड का डिसीजन था? इसका तो नहीं हो सकता जो अभी आए हैं चेयरमैन साहब के, एक एशिया कप पहले से डिसाइड था, जो हाइब्रिड मॉडल था, जो जिस पहले बोर्ड 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं श्रीलंका। जी आप खेले हाइब्रिड, आपने जब ये एक्सेप्ट किया जी एशिया कप जो है वो मिडल वाले जो पाकिस्तान बोर्ड से आप आया शिफ्ट था करके श्रीलंका में, तो वहाँ पे उस वक्त सोचना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रिकेट बोर्ड में जो ये डिसीजन हुए वो क्रिकेटर से मुशावरत से नहीं हुए। नोबडी वाज देयर एज क्रिकेटर जो ये डिसीजन करता या ये फोर्स करता कि हम किस मुल्क में कितनी क्रिकेट खेलनी चाहिए कि नहीं खेलनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि कंडीशंस इतनी टफ होती हैं श्रीलंका में। 97 में वसीम भाई, इफ यू रिमेंबर, हमारे 4-5 प्लेयर अनफिट हुए थे, मोहम्मद जाहिद का कैरियर ख़त्म हुआ वहाँ से, शायद नज़ीर गॉट अनफिट। पाकिस्तान का जो पेस अटैक था इन श्रीलंका वो नए बॉल से सलीम मलिक और एजाज अहमद ने बॉलिंग की थी, सलीम मलिक एंड एजाज अहमद ने नया बॉल किया था, ड्यूरिंग मैच ही अनफिट हो गए थे। आई थिंक ये प्लानिंग अच्छी नहीं थी, आई थिंक इस प्रिपरेशन की, कि हम एक उसमें आ रहे थे जोन के अंदर कि हम जीत रहे हैं, नंबर 1 है तो हम नंबर 1 देखिए कोई भी चीज़ अचीव करना बहुत इजी होता है, बट उसको मेंटेन या उस जगह पे सस्टेन करना अपने आप को, उससे ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है आपको, उससे ज़्यादा प्लानिंग चाहिए होती है। तो लड़के भी इंडिविजुअली मैं कहूँगा, नॉट ओनली कि इसमें सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का कसूर है कोई, बट एवरी इंडिविजुअल इज़ द पार्ट ऑफ इट। मिसबा, लेट मी ब्रिंग दिस यू, हाइंडसाइड अगर आप देखें उसको, तो क्या ये जो हाइब्रिड वाला मॉडल एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान ने, वाज इट अ गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन? आई थिंक जब मुझे ये पहली दफ़ा पता चला कि ये स्केड्यूल है वर्ल्ड कप से पहले, तो मैंने एग्जैक्टली यही कहा था कि गुड लक टू पाकिस्तान टीम। अगर इसमें सरवाइव कर जाएं हम, पाकिस्तान टीम की इंजरीज ना हो या परफॉर्मेंस बेहतर हो, क्योंकि एक मैच आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं या एक श्रीलंका में खेल रहे हैं, उससे पहले सीरीज़ खेल रहे हैं, क्यों? आपका अपना टूर्नामेंट है और सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है? आपकी अपनी टीम। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब भी आप स्केड्यूलिंग करते हैं तो आपकी योर टीम मैनेजमेंट शुड बी ऑलवेज ऑन बोर्ड। उनसे पूछे बगैर आपको कहीं पे भी, आप MOU जब साइन करते हैं बाहर के मुल्कों के साथ भी किसी टूर का, तो आपका जो हेड कोच है, आपकी जो टीम मैनेजमेंट है, कप्तान, दे शुड बी जस्ट सिटिंग इन दैट मीटिंग। उनको पता होना चाहिए कि कैसे, कब उनको वो साइड मैच चाहिए, किस तरीके से अरेंजमेंट है, प्रिपरेशन कितनी चाहिए पहले, कब टूर करना है। उसके बगैर हम करेंगे कि ठीक है जहाँ मैच मिल रहे हैं, ओके आ रहे हैं मैच, आप ले लें, तो फिर यही होगा। ऑस्ट्रेलिया हम जब भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर करते हैं, ऐसे ही होता है। न्यूजीलैंड हम चले गए, वहाँ पे 14 दिन क्वारंटीन हो गया, 14 दिन के बाद 3 दिन में हमने इंटरनेशनल मैच खेलना है, एंड देन हु हैज़ टू बेसिकली आंसर दोज क्रिटिक्स? टीम मैनेजमेंट, कप्तान। कैसे 14 दिन कमरे में बंद हो के आप 3 दिन के अंदर इंटरनेशनल मैच के लिए तैयार हो जाएंगे? इंग्लैंड गए, इसी तरह वहाँ पे भी 4 दिन में आपने, पिछले 20 दिन आपने क्वारंटीन में गुजारे हैं या फिर प्रिपरेशन नहीं है, 4 दिन में आपने तैयार होकर वनडे क्रिकेट खेलनी है, फिर आप वहाँ 3-0। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये स्केड्यूलिंग इतना बुरा अफेक्ट करता है। आपने बिल्कुल क्लियरली देख लिया पाकिस्तान टीम के साथ, एक ऐसा बॉलिंग अटैक जिससे दुनिया डर रही थी। विद इन अ पीरियड ऑफ अ मंथ आपकी बिल्कुल ऐसा लगा जी टूथलेस बॉलिंग हो गई, कोई समझ नहीं आ रही। वो इतना, वो जो मोइन भाई ने बात की है कि फटीग इतनी हो गई बॉडी उनकी कि बॉडी आपका साथ ही नहीं दे रही कि आपने बॉलिंग करनी कैसी है। तो ये मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। So let me bring this to you, शोएब, नाउ कि क्या अब जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है 2025 में, कि उसमें भी चांसेस आर के कोई ऐसे ही मामलात हो जाएंगे, दोबारा इंडिया नहीं करेगा पाकिस्तान में आके खेलना, टूर नहीं करेगा या नहीं आएगा खेलने के लिए, तो फिर कोई हाइब्रिड मॉडल होगा? और अगर होगा तो क्या पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना चाहिए हाइब्रिड मॉडल पे? देखें,
प्रॉब्लम्स तो आएंगी, उनको ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए, लेकिन पहले तो ये इस चीज़ पे इन्फसाइज करना चाहिए, नहीं जो मर्ज़ी हो जाए चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और पूरी अरेंजमेंट्स जो हैं वो अभी से रेडी कर लेनी चाहिए या कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अगर उस पर वो नहीं होता और आपको हाइब्रिड पे फिर जाना पड़ता है, यू हैव टू हैव अ बी प्लान ऑल्सो, वो आपका इन प्लेस होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो भी नहीं चलता, आपके पास सी प्लान भी होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन वी मेक श्योर कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जिनको हम रेडी कर रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, वो उस टाइम के लिए फ्रेश हों, उस टाइम के लिए वो रेडी हों, ताकि आप बेस्ट चांस दे सकें अपने प्लेयर्स को कि वो टूर्नामेंट में जाएं और अच्छा कर सकें। All right, with that, we're going to take a break here in the Pavilion. But when we come back, we're going to talk about the game that we have in hand today. And we'll talk more about other things. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. You're watching Sports and Sports in the ARY Zap app. And we are getting closer to the action today. This is the game we have in store for you. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं आज का मैच। आज मुकाबला है साउथ अफ्रीका का वर्सेस अफगानिस्तान। अहमदाबाद से ये मैच आपके लिए बराह रास्त लेकर आएंगे 1:30 बजे। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए। अफगानिस्तान थियरेटिकली स्पीकिंग अभी भी जा सकती है सेमीफाइनल में, बशर्ते कि मेरा ख्याल है कुछ 400 रन से इनको मैथमेटिकली बात है सर, 440 रन से अगर ये हराते हैं साउथ अफ्रीका को आज तो जा सकते हैं, बट दैट्स मैथमेटिकली इट इज देयर, राइट? नहीं समझिए बेसिकली दैट इज द सिचुएशन। But it's an interesting game in a way to check South Africa, because so far this year their winning percentage is 91% batting first and 44% batting second. Wow, so we've drastic seen drop. even this World Cup, जब भी उन्होंने बैटिंग सेकंड की एक दो दफ़ा आराम से हार गए हैं। बिल्कुल। So even Afghanistan can put pressure on them if इनको ये बैटिंग सेकंड कराएं। So let's see, ये भी हो सकती है इसमें, सॉरी खुद भी बैटिंग करनी चाहिए। I think हमें ये कहना था कि खुद टॉस जीतेंगे यार आज हम बैटिंग फॉर द बिगर मैच सेमीफाइनल होने जा रहा है, कोलकाता के अंदर मिलेगी, तो वहाँ भी स्पिन पिच होता है। यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इनको नज़र आ रहा है कि अफगानिस्तान के जी इतने सारे स्पिनर्स हैं, तो अगर खुद जाके चेज करते हैं डजंट मैटर, अगर हार भी जाते हैं तो उनके लिए इतना मैटर नहीं करता। सेमीफाइनलिस्ट हैं ऑलरेडी। एक चीज़ और भी है मोइन भाई की और वसीम भाई की बात के बाद, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का ही मैच होना है सेमीफाइनल। सो व्हाई नॉट you, even if you win the toss as a South African captain, bat second, put your team in a position जहाँ पे एटलीस्ट उनके पास जब वो मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि नॉकआउट मैच है और इसमें मेरे ख्याल में इनको टॉस जीत भी जाए तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए, बैटिंग को ज़रा थोड़ा प्रेशर डालना चाहिए ताकि वो भी कोई वे आउट निकालें कि कैसे हम जो है चेस कर सकते हैं। Right on. With that, Wasim, your favorite subject. Pitch report brought to you by Colgate GRF. Wasim, what do you think? Yeah, looks a good pitch. Like Nasir said early on, might नया गेंद थोड़ा बहुत शायद हिले because जो उसने मॉइस्चर बताया, because गर्मी बड़ी है, 34 डिग्रीज बता रहे हैं, feels like 37, 38. मॉइस्चर इसलिए रखा है, it's a red soil, he also said, कि ताकि विकेट ड्राई ना हो, टूटे ना। सो जो मॉइस्चर है उसकी वजह से बॉल शायद थोड़ा टू पेस्ड हो फॉर फर्स्ट 10 overs एंड द गेम प्रोग्रेसेस, इट बिकम्स बेटर बैटिंग डेक बिकॉज ऑफ द ड्यू। जो सबसे अच्छी बात उन्होंने की है कि देयर इज़ बेट फॉर एवरीवन। अब इसमें भी अगर आप देखें, टॉस में अगर आप पहली बॉलिंग भी करते हैं तो स्टिल यू हैव समथिंग देयर, और फिर अगर बाद की भी बॉलिंग आ जाती किसी टीम की तो अर्ली ऑन अंडर लाइट्स जो नया बॉल है जिस तरीके से वो घूमता है, ऑस्ट्रेलिया में एडवांटेज उसका लिया। तो इस लिहाज से जब नॉर्मली पीछे मैचेस हो रहे थे, T20 वर्ल्ड कप हमने देखा कि बहुत ज़्यादा टॉस पे डिसीजन हो रहे थे, यहाँ आप देखें यहाँ टॉस पे डिसीजन नहीं है। जो टीम अच्छा खेल रही है, सेकंड बैटिंग में अगर आप आए हैं, पहले 10-15 ओवर यू सर्वाइव, अच्छा खेले हैं, देन यू हैव अ गुड चांस लेटर ऑन, ड्यू की वजह से बॉल अच्छा बल्ले पे आता है, स्विंग नहीं होता, स्पिन कम हो जाता है, तो वो जो एडवांटेज डिसएडवांटेज टॉस की वजह से होता है ना फर्स्ट सेकंड इनिंग, वो काफ़ी हद तक वैसे नहीं है, और टीमों को जो अच्छा खेलती है वही टीम अच्छा खेलती है। एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे, जब पिच रिपोर्ट देते हैं तो इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि बहुत सारे कैप्टन्स ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग की बिकॉज ऑफ ड्यू फैक्टर। तो जब पिच रिपोर्ट आ रही हो तो एक चीज़ इनको ज़रूर बतानी चाहिए, बिकॉज दे आर यूजिंग सो मैनी डिफरेंट वेन्यूज़, किस वेन्यू पे किस टाइम पे ड्यू फैक्टर आता है।
What time? हाँ व्हाट टाइम, क्योंकि कभी अब जैसे बॉम्बे में था वहाँ लेट आता है, दिल्ली में जल्दी आ जाता है ड्यू फैक्टर, क्योंकि पंजाब का एरिया है, दिल्ली साइड, मुंबई जो है वो कराची के वो पास है, तो ये भी आई गेस दे शुड आल्सो प्रोवाइड सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्यू फैक्टर के यार इस टाइम पे हाँ 10 ओवर्स के बाद आती है सेकंड इनिंग्स में या 20 ओवर्स के बाद आती है, क्योंकि थोड़ा सा डेप्थ में जाके मुझे लग रहा है पिच रिपोर्ट को और बेहतर बनाया Not a जा bad सकता है। idea. Yeah, actually. I think that is a good idea to add that kind of data in the well, good stuff, buddy. With that, we're going to take a break here on the Pavilion. See you on the other side. Welcome back to the Pavilion. You're watching A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app, and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. Today, it is South Africa versus Afghanistan. उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे. Misbah, let me ask you this question. कि आज के मैच में अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि उनको बैटिंग करनी चाहिए पहले या वो अपने वीकनेसेस अपनी टेस्ट कर लें. ब्रेक ते चुप नहीं होंगे यार, सारी गल्लां उत्थे कर लेंदे ने. ये आपने नोट किया है ब्रेक पे सारी कॉन्वर्सेशन ब्रेक में हो जाएगी. अभी कर लेते हैं, एक टेक्निकल चले वही बात करें जो आप लोग कर रहे थे आपस में. करें. हाँ जी, नहीं सवाल करें ना फिर नहीं, सवाल के बगैर ही कर रहे थे ब्रेक में. मैंने तो कोई सवाल नहीं किया था ब्रेक में. ठीक है वहीं से शुरू कर देते ना. हाँ जी, अब अफगानिस्तान को क्या करना चाहिए अगर वो टॉस जीत जाए? यही से बात शुरू हुई थी ना. अफगानिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए. बैटिंग करनी चाहिए. फिर आपका जो है जो टीम है वो अफगानिस्तान है, ऐसी बात हो रही थी. हाँ, कह रहे थे टॉस के बाद. और मुजीबुर रहमान क्या है आपका प्ले टू वॉच. प्लेयर ऑफ द मैच होगा आज का. प्ले टू वॉच, यही बात हो रही थी मैं कह ना. रहा था अच्छा Wasim, how are you, man? Long time no see, man. I'm okay, man. We should go out for that I coffee. checked out. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ I ਮਿੰਟ also ਮੌਕਾ just- ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ. I really did. अब बात करें तो आप बीच हाँ, में एक कट्टा मार मिनट का देते हैं. मौका दिया आप लोगों ने बात करने का. इसलिए चूंकि मुझे अंदाजा हुआ है कि ये कॉन्वर्सेशन ब्रेक में ही रहनी चाहिए. ये यहाँ पर नहीं की जा सकती. हमें अंदाजा हो गया. थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट. माय अपॉलॉजीज. कैरी ऑन कैरी ऑन. So Misbah, coming back to the question that I wanted to ask you is कि हम अभी बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका भी अपने आप को टेस्ट कर ले जो चीज़ में. मोइन भाई ने अच्छा कहा कि if they're bad at chasing, they should go out for a chase today. But एक interesting point आपने किया है कि it is important for them to have their confidence for the semi-final. Yeah, it's a big call. I understand where Moin is coming from, Shoaib is coming from, कि इनको चेज अगर में ये प्रॉब्लम है तो दे शुड ट्राई. यू सी वर्ल्ड कप में देयर इज नो काइंड ऑफ प्रैक्टिस गेम्स एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर ईच टीम हु हैव क्वालिफाइड इन द सेमीफाइनल्स टू टेक दैट कॉन्फिडेंस इनटू दैट नॉकआउट गेम. इमेजिन सेमीफाइनल से पहले एक मैच आप हार जाओ and that too against the team whose upcoming team who's done really well in this World Cup, so that will dent your confidence. That's the kind of a risk they have to एक take. चीज़ और है वसीम भाई, वो इसलिए भी है कि हाउ यू सो श्योर दैट यू गोइंग टू विन बोथ द टॉसेस, वन But that I सेमीज understand. एंड फाइनल. सो यू गॉट टू बी फुली प्रिपेयर्ड कि जो हमारे सामने हर्डल्स आनी है हम उसके लिए हर एंगल से It's रेडी. kind of a double-edged sword, isn't it? Yeah, that's the वो इसी पे बाद में रिग्रेट हो कि हमें एक चांस मिला था मैच में प्रिपेयर होने का और हमने अपने आप को सिचुएशन में नहीं डाला तो मैं भी ਅਸੀਂ फिर ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ में भी chance तो मिला था. जरा इधर पे रोशनी कौन सा मैच है जी? वसीम भाई Bangladesh 99, you forgot. नो आई डोंट. We won the toss and we fielded. Why? We chased. Right. Because we were winning most of the time. Our strength in 99 was to win the Batting toss first. and bat. Right. Because ये डिसीजन होता है आपकी टीम की कंपोजिशन पे, आपकी टीम की स्ट्रेंथ पे. हमारी स्ट्रेंथ थी बॉलिंग. हम 6 बॉलर थे, माई सेल्फ, शुएब, प्लेइंग 11 में रजाक, अजहर एंड सकलैन. या लाला लाला was in the squad but he playing 11 की बात कर रहा हूँ. और पहला मैच हम जीते वेस्ट इंडीज से ब्रिस्टल. इतनी घास थी. टॉस जीते, हमने पहले बैटिंग की, 229 किया हमने, जीत लिया आराम से मैच. सो इस मैच में हमने कहा चलो डिसाइड करते हैं. एक तो 1-2 लड़कों को खिलाया जो आप लोग बात कर रहे हो कि जो है अपना बेंच स्ट्रेंथ ट्राई कर लें. सो वी ट्राइड दैट. मलिक को खिलाया, उसमें वकार, शुएब वाज प्लेइंग, वकार प्लेड इन दैट गेम and we won the toss and we elected to bowl first to get the hang of chasing. And we lost to Bangladesh. We didn't chase, yeah. बट इट हैपेंस कभी कभार. लेकिन ये रिग्रेट नहीं है कि आपने ट्राई नहीं किया. आपने देखा उस मैच के बाद जो लड़के बेंच स्ट्रेंथ पे थे उनको खिलाया था, बट उस मैच के बाद फिर आपने वापस अपनी मेन स्ट्रेंथ के ऊपर आ गए. आई होप साउथ अफ्रीका का माइंडसेट वो ना हो जो हमारे मुल्क का है. बिकॉज अभी 99 को कितना अरसा हो गया है?
99 was 24, but I have to 25 साल अजय तक पूछ देने. हाँ मैं ये कह रहा हूँ because it's amazing that you bring this up. Yeah. और ये आज की इस कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ज़्यादा हो गया कि क्या साउथ अफ्रीका ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल. आओ यार हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं अपने आप को सारे के सारा. एंड लुक अ डिसीजन कैन गो रॉन्ग, यू नो, इवन अ गुड डिसीजन कैन समटाइम्स बैकफायर. एंड वो ये आपकी बात दुरुस्त है. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप. ये भी हो गया ना फाइनल में जब आप लोगों ने कहा कि नहीं हमने सेम फॉर्मेशन के साथ जाना है. आप टॉस जीते थे फाइनल में 99 बैटिंग और हम लोगों ने बैटिंग वो And की tell थी. me one thing, another thing I want to clear up with this generation. अब ये एक कप्तान का डिसीजन होता है टॉस जीत के क्या करना है. नहीं देयर इज अ थिंक टैंक बिहाइंड इट. So can you tell these people कि it's just think tank, coach, it's senior not just the players captain. सब इकट्ठे डिसाइड करते हैं. वो बदकिस्मती की बात है. हमारे यहाँ मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो कोई भी चीज़ जो होती है ना, हम उसकी बुराइयां सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं. एंड जस्ट बिकॉज वी लॉस्ट दैट फाइनल. मैं तो कहता हूँ कि we don't need enemies. वी डोंट नीड एनिमीज. असली आप ही बड़े हैं. एक और चीज भी है ना छड्डो हमारे दुश्मन. में अच्छा हो तो 10 लोग आते हैं, वो हम थे इसमें. बुरा हो तो एक बंदे को उसके नहीं, लेकिन शोएब इधर तो ये है कि अच्छा हो जाए ना और किसी और का अच्छा हो जाए और किसी और ने अच्छा कर दिया हो तो उसके अच्छे को भी पोल्यूट करने की कोशिश की जाती है. नहीं, असल में तो इसमें ना मसला ये था. वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे हैं. ठीक है, one sided. I have to tell you something. It's the most disappointing for me as a captain, as a player and the teammates. I have to share something with you. Sure. आज सुबह गाड़ी में होटल से आते हुए मैंने मिसबा को बताया कि मैंने एक ट्वीट पढ़ा, उसमें आपकी तस्वीर है 99 वर्ल्ड कप की. पोडियम पे आप खड़े हैं, रिकी पॉन्टिंग गालिबन ऑस्ट्रेलिया स्टीव वॉ जो है वो ट्रॉफी ले रिसीव कर रहे हैं और आप पीछे खड़े हैं एंड यू स्माइलिंग एंड यू क्लैपिंग बिकॉज दे वन द कप, राइट. एंड somebody wrote पाकिस्तान से, which I think was very unusual कि यहाँ से इतना एक अक्लमंद ट्वीट आया है. उन्होंने कहा बड़ी बदकिस्मती की बात है, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, मैं उसको थोड़ा उर्दू समरी बता रहा हूँ आपकी, कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम अपने हीरोज़ को जो है वो फौरी तौर पे उनके ऊपर शक कर देते हैं और उनको खाम खा में जो है नीचे निगेट करने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. आप प्लीज़ ये तस्वीर दिखाइएगा वसीम अकरम को आज और उनसे कहिएगा कि मैं कम अज़ कम माफ़ी मांगता हूँ उनसे कि हमने उनकी इज़्ज़त नहीं की, क्योंकि दूसरे मुल्कों के हारे हुए कप्तानों की भी बहुत बेहतर इज्जत की जाती है जो फाइनल तक पहुंचे भी नहीं, और हमारे यहाँ जो है वो ये नहीं किया जाता. सो आई आल्सो शेयर दैट सेंटिमेंट. शुक्रिया आपका, देर आए दुरुस्त है, बट थैंक यू. आई कैन इमेजिन वसीम भाई प्लीज उसी टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका जो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, उनका जिस वक्त वो साउथ अफ्रीका पहुंचे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का वेलकम किया था पूरी कौम ने, बिकॉज दे प्लेड रियली वेल इस वर्ल्ड कप. सेमीफाइनल से बाहर हो गए तो, लेकिन हम तो फाइनल तक पहुंचे थे, नंबर 2 थे. उनका तो वेलकम होया तो मैं 4 दिन एहतसाब ਨੂੰ जवाब देते ने जाके इस्लामाबाद कि क्यों हुआ 4 days रियली सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक. एंड सम रैंडम पर्सन इंटरव्यूइंग मी हु नेवर वॉच क्रिकेट, नेवर सॉ क्रिकेट इन हिज लाइफ, उसको ये नहीं पता कि वर्ल्ड कप वाइट बॉल और रेड बॉल क्या होता है. उसको मैंने 4 दिन जवाब दिए हैं. ये हॉरिबल फीलिंग्स होती हैं. आई स्टिल रिमेंबर. और जो इंसान उस टाइम गुजर रहा होता है ना, वो दुनिया का कोई इंसान I नहीं was गुजर alone, man. सकता. My wife, my kids, Horrible and that was feeling. it. Well, gentlemen, let me say this, all of you. I do apologize. बदकिस्मती से हमारे लोग जो हैं, कुछ लोग सारे नहीं, हमारी कौम बड़ी अच्छे लोगों पे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आप लोगों को कुछ आपके सेंटिमेंट हर्ट होते हैं. आई डू अंडरस्टैंड, बट आई डू अपोलोजाइज. मैं तो अब इम्यून हो गया हूँ. ढीठ हो गए, ढीठ हो गए, इम्यून नहीं हुए, ढीठ हो गए. परमानेंट सुन करने वाला इंजेक्शन वाले. And that's also not nice because it's unfair to you guys. You had to go through this and that you have made these defense mechanisms. कि यार मैं तो बस I don't care. That's really sad. I do apologize. Really. It's okay. With that, we're going to take a break here on the Pavilion. See you on the other side. Welcome back to the Pavilion. You're watching Air Sports and Sports and the Airwise app, and we are coming very close to the game. We have Afghanistan clashing with South Africa. South Africa have already qualified for the semi-final. तो break पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्या South Africa को कोई experiment करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. And Wasim brought up a very good point कि 99 में बांग्लादेश वाले मैच में पाकिस्तान जब एक अच्छी पोजीशन में था टूर्नामेंट में, तो फैसला किया कि क्यों ना हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट कर लें, और वो बैकफायर कर गई सारी डिसीजन. मिसबा, सवाल वैसे मैंने आपसे किया था ये वाला कि what do you think, should they go with that or not? But let's now talk about Afghanistan because they're a good team as well. Good. They've done really well. They have done really well for themselves in this World Cup, and they've come a long way as a unit. डिसअपॉइंटमेंट होगी अफगानिस्तान को. आई थिंक जो लास्ट गेम हारे हैं जिस तरीके से, आई पर्सनली थिंक कि जिस किस्म की क्रिकेट उन्होंने खेली है, जो इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, द वे दे प्लेड,
पिछला मैच उनको जीतना चाहिए था और उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त चांस होता आज सेमीफाइनल में पहुंचने का। बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी उनके लिए, बट दे वट एवर दे हैव अचीव्ड इन दिस वर्ल्ड कप दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। सेमीज़ में अगर नहीं भी पहुंचते, स्टिल आई थिंक आज का मैच उनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो जीतते भी हैं, इट डजेंट मैटर कि वो सेमीफाइनल में जाते हैं या नहीं जाते, ये एक बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन है उनके लिए। क्योंकि जो इतने अरसे से हम देख रहे थे बड़े टूर्नामेंट्स में कि जी कभी बड़ी टीम से टॉप 6 या 8 टीमों से कभी मैच नहीं जीते, यहाँ पे आके उन्होंने बिल्कुल ही उस चीज़ को चेंज किया है। आप देखें वर्ल्ड चैंपियन है सारे जिनको उन्होंने यहाँ पे मैचेस हराए। क्रेडिट टू देयर बैटर्स इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल वहाँ पे उनका टीम का कॉम्बिनेशन, कॉन्फिडेंस, गुरबाज, इब्राहिम, रहमत, हशमतुल्लाह। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 चीज़ें थी वो ये थी, नंबर 1 वो जो एक मेंटल बैरियर जब ब्लॉकेज होती है आपकी, क्योंकि बड़ी टीम के अगेंस्ट बड़े टूर्नामेंट में हम नहीं जीत सकते, एक तो उसको उन्होंने चेंज किया, बीट किया उसको, काम रहे। और दूसरी चीज़ चेजिंग, कि यार चेजिंग में वो थोड़ा सा आप उनको ड्राई कर दें उनके रन्स, तो वो खुद ही गलत मलत शॉटें मार के आउट हो जाते हैं, वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। उसको भी ओवरकम किया उन्होंने और चेजिंग में जीते हैं वो। तो दैट मीन्स उन्होंने ठीक ठाक एक इम्प्रूवमेंट कर लिया। आगे आने वाले वर्ल्ड कप से, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप है या बड़े इवेंट्स जब भी आएंगे, दे आर अ फोर्स नाउ। आप अब ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान है चलो जी इजी मैच है ठीक है जी हाँ, नो, दे आर देयर। अब वो सेमीफाइनल की टीम है, रिगार्डलेस कि वो आज पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। डिसअपॉइंटमेंट जाहिर है, पिछला मैच जिस तरीके से गया है वो दे डिज़र्व बेसिकली। बहुत सारी टीमों के साथ कंपैरिजन करें कि एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस है। ओपनर अच्छे हैं, मिडल ऑर्डर अच्छा है, ऑलराउंडर अच्छे हैं, नए बॉल पे उनके जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है, उनका एक एक्स फैक्टर जो स्पिन बॉलिंग का वो भी है। फील्डिंग ने कहीं ना कहीं उनको थोड़ा लेट डाउन किया, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम दोनों के लिए। साउथ अफ्रीका के लिए जो हम पहले आपने मेरे से सवाल किया है कि नाउ दे हैव 2 थिंग्स इन देयर माइंड। नंबर 1 जो इन्होंने बात की वो बिल्कुल ठीक बात की है। असूलन अगर वर्ल्ड कप को जहन में बड़े गोल को रखना है तो यू हैव टू जस्ट टेक द डिफ़िकल्ट चॉइस। टॉस जीत के भाई बॉलिंग करेंगे और एक तो हमने अपनी बॉलिंग को फिक्स करना है जो डे में हम सही नहीं कर रहे, और दूसरा हमने अंडर प्रेशर बैटिंग करनी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड कप। ये मुश्किल है, ये मुश्किल वाली चॉइस है। और दूसरी ये है, अच्छा यार मोमेंटम चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द सेमीज, सो जस्ट ट्राई टू विन इट कन्विंसिंगली। बट ये अब दे हैव टू मेक इट डिपेंड्स ऑन देयर रूल। आई हैव अ क्वेश्चन। अभी आपने कहा कि अफगानिस्तान ने चेजिंग का प्रॉब्लम था, या बड़ी टीम आती थी तो वो जो है ना हिल जाते थे, तो उन्होंने चेजिंग वाला एलिमेंट कम किया, उन्होंने चेस किए, पाकिस्तान के अगेंस्ट चेस किया। वो उन्होंने कैसे हासिल किया? यही करके ना, टॉस जीत के उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हम बॉलिंग पहले करेंगे, ड्राई बॉल देना है हमारे बॉलर्स को, मोस्टली डिपेंड करते हैं स्पिनर्स पे, तो उन्होंने वो चीज़ करके सीखी ना। सो व्हाई नॉट साउथ अफ्रीका? अच्छा, Moving forward. that's a good point. That's a good question. वसीम, लेट मी आस्क यू, ये एक बड़ी और भी मैं बल्कि आप सबसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था, ये अफगानिस्तान की जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम जो देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, किसके फिंगरप्रिंट्स आपको नजर आ रहे हैं, किसके सिग्नेचर है? इज इट जॉनथन ट्रॉट और अजय जडेजा? हुज फिंगरप्रिंट्स कैन यू सी? जडेजा ने तो अभी ज्वाइन किया है। वी कैन जस्ट गिव मोटिवेशनल टॉक्स टू द बॉयज, टेक्निक थोड़ी बता देगा, माइंडसेट बता देगा। अगर क्रेडिट जाता है तो आई थिंक कोच को जाएगा, प्लेयर्स को तो जाता ही जाता है, कोच, द बोर्ड। जिस तरीके से मुल्क के हालात थे 1-2 साल पहले जो हुआ, उसके बावजूद क्रिकेट उन्होंने रखी है और सिस्टम बनाया है। सो एवरीबडी इज इन्वॉल्व विद अफगानिस्तान क्रिकेट एंड द फैंस टू। एवरीबडी शुड टेक क्रेडिट। एक चीज़ ज़रूर है वसीम भाई, जो वी मस्ट गिव क्रेडिट टू अजय जडेजा, वो ये था कि जो इनको बिगेस्ट प्रॉब्लम था इनकी मिडिल ऑर्डर, लेकिन मिडिल ऑर्डर से जो उनके कैप्टन है शाहिदी, उन्होंने रन्स बनाए, उमर जई ने रन्स बनाए, तो ये क्रेडिट शुड बी गिवन टू अजय जडेजा, क्योंकि वो भी मिडिल ऑर्डर बैटर थे और बहुत अच्छे बैटर थे। ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड, नो डाउट। सो आई थिंक क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू अजय जडेजा, स्पेशली जब वो चेजिंग का मामला आता है और मिडिल ऑर्डर ने जैसे रन्स बनाने शुरू किए हैं कंसिस्टेंटली। आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन टू हिम। Yep. All right. With that, we're going to take a break here in the Pavilion. When we come back, we're closer to the action. Stay with us.
Welcome back to the Pavilion, and with that, we've got Killer, the Miller, with us. Let's listen in. All right, Miller the Killer. Their confidence was the key word. कि कॉन्फिडेंस इस मैच में हमने अपना जो है वही वाली बात आ गई कि आई थिंक मिसबा जो आप कह रहे थे मोमेंटम और कॉन्फिडेंस वो अपना इंटैक्ट रखना चाहते हैं सो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू डू एनीथिंग अनयूजुअल हियर टुडे टू चेक themselves. With that, we have another interview with us. We've got Rashid Khan from the Afghanistan camp. Let's listen in. Okay, so sorry, we're going to stop that because we're going to get very close to the toss. Very organized, all of you. I was wondering. Yeah, the toss is coming up. Yeah, right. So are we ready to go to the toss, guys? Are we ready to go to the toss? I think we are just getting sorted out for the toss. Okay. All right. So with that, we're going to take you straight to the stadium where the two captains are walking out and getting ready to flip the coin. And with that, it's time for the flip, brought to you by Samsung Flip. So जनाब कलकत्ता से खबर है कि अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और 4 स्पिनर्स के साथ फिर खेल रहे हैं. हाँ ठीक है, ठीक फैसला किया है. उनका स्ट्रेंथ स्पिनर्स हैं एंड इज बैकिंग हिज स्पिनर्स अप. ठीक है, दे हैड वन बैड गेम इज अ वेरी माइल्ड वर्ड. दे आर अ हॉरिड गेम. बट अब साउथ अफ्रीका ने इस साल वनडे में 10 में से 11 दफ़ा पहले बैटिंग करके जीते हैं और चेजिंग में 4 मैच जीते हैं 9 में से. सो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, गुड टॉस टू विन फॉर अफगानिस्तान. एक चीज़ बहुत अच्छी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी. भाउमा सेड कि ठीक है, वी हैव बीन स्ट्रगलिंग व्हेन इट कम्स डाउन टू चेजिंग, बट ही सेड वी गेटिंग अनदर अपॉर्चुनिटी टू लर्न हाउ टू डू दैट. अमेजिंग वर्ड्स. और लर्निंग जो है ना, दैट्स अ key word in life. I think learning should never stop. But also, having said that, I would say that he can say that, he can afford to say that because they've already qualified for the semi-final. He can say that we can learn. Again, here's another opportunity. यहाँ पे नहीं होगा तो फिर semi-final है आगे. You understand what I'm saying? अगर ये कोई और इस वक्त अगर ये qualification का मैच होता कि जी अब ये जो जीतेगा और उसने आगे जाना है तो he would be under a lot of different pressure there. You know, so I think definitely. But I guess they have been playing good cricket, as Wasim bhai also mentioned. The day they bat first. It's very hard to beat them. It is. पर उन्होंने मेंशन किया था कि अगर वो टॉस जीते तो क्या करते. मैंने सुना नहीं ऐसी कोई बात नहीं. बट उससे जो इम्प्लीकेशन जो थी जो हार्षा ने उससे जब पूछी कि यू यूजुअली लाइक टू बैट फर्स्ट, राइट, उसने कहा एक और अपॉर्चुनिटी है, हम अपनी जो खामी है उसको पूरा करें. प्लेइंग 11 अफगानिस्तान की मोइन आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. टेक अस थ्रू. हाँ जी, सेम टीम के साथ जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं की. डिपेंड करें अगेन अपने 4 स्पिनर्स के ऊपर. गुरबाज, इब्राहिम, रहमत, हशमत, नबी, अजमत, इकराम, राशिद, मुजीब, नूर. आई थिंक ये बैंक कर रहे हैं अपनी उसी स्ट्रेंथ के ऊपर जिस स्ट्रेंथ के साथ पिछले मैच में खेले थे. ऑल्दो कि एक बहुत ही डिज़ास्टर हुआ था इनकी बॉलिंग सही जगह नहीं कर सके थे पिछले मैच में. आई होप के दे विल कम बैक एंड दे प्लेइंग फॉर देयर प्राइड. And South Africa playing around Wasim? Yeah, they have a couple of changes. Tabrez got dropped and obviously Kotsi comes in and Fakhar-e-Alam comes in as well, all-rounder. He can bowl a bit, he can bat a bit, bits and ball play. Dekog, Bahuma, Vendadusa, Akram, Klassen, Miller, Fakhar-e-Alam, Kotsi, and of course 2 fast bowlers, the good ones, Rabada and Nagedian. I think one of the best spinners is South African side, and in this World Cup performed well, Maharaj. It's a good side. It's a good side, and with that we're going to take a break on the Pavilion. When we come back, we're closer to the action. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. खबर कलकत्ता से है कि अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और इसके साथ ही वक्त हुआ है एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस का, brought to you by Express Power. All right, let's start off with you, Shoaib Malik. South Africa. South Africa. Well done, Moin. Yeah, South Africa for me as well. South Africa. Where's अगर आंकड़ों को देखा जाए तो उनके मुताबिक चर्चा की जाए तो साउथ अफ्रीका. थोड़ी खैर हो जाए. Misbah is one line. Afghanistan. Okay. Amazing. So 3 South Africas and 1 Afghanistan. And those are your expert predictions, brought to you by Express Power. And it's time for the player to watch out for, brought to you by Ufone. Misbah, player to watch out for. सर पे मुजीब ही है. फिर मुजीब ही है. फिर मुजीब ही है. मुजीब. Okay. Wes? I'll go for Moin have gonna pick Quinton, so I'll pick up Markram. Markram. Okay. Moin? उसी मैंने बता दी है ना. क्या? क्विंटन डी कॉक. Quinton de Kock. All right. And Shoaib? Mr. Rabada. Rabada. All right.
And those are your players to watch out for. I'd like to apologize. वो गालिबन मैंने एक दो दफ़ा जो है वो कलकत्ता बोल दिया. It's Ahmedabad that we're playing the game in. Good morning to me. Wasim, sorry about that. I did say that. You could have connected me. आप लोग सारे तुसी भी सुनते हो ना मेरे नाल. यही कुछ हो रहा है थोड़ा जया. जी आपकी बातों पे ज़्यादा गौर नहीं करते ये लोग. हाँ मैंने नोट किया. आप काफ़ी ठेठ बिठेठी मारते हैं. Yeah, it is Ahmedabad and not Calcutta. My apologies for that. Target, Misbah, किस नौयत का target यहाँ पे set करना होगा अफगानिस्तान को to apply a lot of pressure on South Africa? I think 270, around 270. Should be enough for Would be them? a challenging target. Enough Yeah. तो कुछ भी हम नहीं कह सकते, but जिस तरह की bowling है इनकी, I think challenge कर सकते. Average score, विनिंग क्या होगा? average score so far on this pitch has been 253 in this World Cup. So yeah, 270, 280 will be a good total. And for Afghanistan, of course, a victory would be very, very good for them to, finish their campaign. yeah. Yep. All right, gentlemen. With that, I'd say thank you very much, Shoaib Malik. Thank you, Moin. Thank you, Misbah. And thank you, Wasim. And with that, we wish both the teams all the best. South Africa and Afghanistan. याद रहे कि South Africa already qualify कर चुका है semi-final के लिए. और Afghanistan, they were very close, very, very close, except for that unfortunate defeat that they had against Australia. And what a Maxwell innings that will not be forgotten for many, many years to come. Wishing both the teams all the best. And with that, we are going to see you at the end of the day after the game is over. Till then, enjoy the game.